तैयार हो जाइए। क्लास 9 एसएसटी का एग्ज़ाम जिसमें कि मिक्स क्वेश्चन पेपर्स हैं। चैप्टर 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेसी सबसे है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, दैट ईच मेंबर शुड हैव वन वोट। किसने कहा था? कोशिश करिए, क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर लिखने हैं आपको। जो नहीं आता है वो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 15 सेकेंड के आसपास। एक बार ये वीडियो वर्कशीट ऑन हो गई तो ऑफ नहीं होगी, क्लोज नहीं करेंगे आप इसे, स्टॉप नहीं करेंगे, पॉज नहीं करेंगे। क्वेश्चन पेपर चलता रहेगा ऐसे ही, आप सॉल्व करते जाइए। थर्ड क्वेश्चन थर्ड स्टेट के बारे में है। विच डिसीजन वॉज टेकन बाय द कन्वेंशन। जो कन्वेंशन हुआ था उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन 4 और 5 एक साथ में आपके सामने आ चुके हैं। विच डिसीजन वॉज टेकन बाय द कन्वेंशन, कन्वेंशन ने क्या डिसीजन लिया था? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है कि अनट्रू क्या है थर्ड स्टेट के बारे में। तो कोई ना कोई बात है जो उनका रॉन्ग है, बाकी तीन चीजें राइट है। Peasants obliged to serve in army, richer member rich and poor poor। क्या ऑप्शन है? सिक्स क्वेश्चन लिवर के बारे में है। जो हमारे बॉडी का लिवर है वो है ये, कोई टैक्स है, कोई यूनिट है करेंसी का, या नन ऑफ दीज? क्या है ये लिवर? ये नीचे फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्वेश्चन आ गया प्रूशिया के बारे में। वॉर हुई थी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया की, तो आर्मी ने कौन सा गाना गाया था? लिबर्टी, मार्शलेस, वाइवा फ्रांस, या नॉन ऑफ दीज? ओहो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कुछ गाने फेमस कर देते हैं लड़ाइयों को। सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में क्वेश्चन है, ये क्या चीज़ है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन के ऑप्शंस। और ये जो थर्ड स्टेट के टैक्सेस हैं इनके बारे में क्या कहना है आपका? थर्ड स्टेट के जो टैक्सेस हैं वो क्या चीज़ है? और साथ में ये भी पूछ रहा है कि टेंथ क्वेश्चन की थर्ड स्टेट, ये पैम्पलेट लिखा था किसी ने, नाम दिया था, तब जाके आज हम इसे थर्ड स्टेट कह रहे हैं। तो लिखने वाला इंसान कौन है? हम्म, बताइए, क्या आप बता पाएंगे इसका जवाब? गल गलोटिन क्या होता है? गलोटिन क्या होता है, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गलोटिन होता क्या है? व्हाट इज गलोटिन? ओल्ड रेजिम क्या होती है? ओल्ड रेजिम किसे कहते हैं? स्टेट जनरल्स किसको कहते हैं, ये बताइए। When did Louis XVI call an assembly of States General to pass proposal for new taxes? Question number 14.
The dates are clearly mentioned here. You have four options. What does the old regime describe? So you have got the same question twice. 15 and the previous question were the same. In the meeting of Attorney Generals, what did the Third Estate demand? This is the very interesting question. Okay, what were the provisions made by the Assembly on 4th August 1789? There were provisions made by the Assembly. Clear? Very good. 20 June, the representative of the Third Assembly assembled in the indoor court. For what? And the 19th question is who are entitled to vote? Okay, in India it is common that everybody votes, but that time, and even today, there are some patches in the world where only few people are allowed to vote. Sounds interesting. The new constitution made France what? A communist party, a communist world, whatever options are. Constitutional monarchy. John Locke, Loche, Locke, whatever you call, wrote which book? 22, 23 here in front of you. What did Louis XVI do? Seeing the power of his revolting subjects. Which of these people were entitled to vote? Who led the representatives of the third estate? Okay, next question is very interesting. Who or which right is not natural and inalienable? I mean, which right is natural is not natural. It is unnatural and inalienable. Okay, so the new constitution made what? Communist. Again, the same question. So I will cancel this question. Declaration of Rights of Man and Citizen. Name the most successful political club which became a rally point for the people who wished to continue the revolution. Which was the most successful club? Due to the elections after Jacobin's revolt, which steps were taken in 1792? Okay. National Assembly voted in April 1792 to declare war against which country? And the assembly elected was called what? Two questions. Next question in front of you. This should have been easy. Instead of the traditional Madam Sir, now they were called by different name. What was it? Louis XVI was sentenced to death on what charge? What charge was against him? क्यों उसको
फांसी पे चढ़ाया, सूली पे चढ़ाया। राजा ने क्या गलती की थी? अच्छा, इंडियन इंडिविजुअल जिसको पसंद आई है रेवोल्यूशनरी चाइल्ड फ्रांस की आइडिया, कौन थे? एंड रेन ऑफ टेरर क्यों कहते हैं 1793 से 1794 को? तब तो उनको आज़ादी मिल गई थी। तब क्या हुआ ऐसा? और स्लेवरी वापस आ गई, फिर से आ गई फ्रांस में। इतनी लड़ाई करने के बाद किसने लाई वापस स्लेवरी? 37 क्या है ये? गाना किसने बनाया था? मार्शल्स। लिखा किसने था ये गाना? इसकी पोएट कौन थी? पावर आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन के बाद, जैकोबिन गवर्नमेंट जब गिर गई तो फिर पावर किसके पास आया? क्या क्वेश्चन है। और जो टैक्स भरना है पीजेंट्स को, चर्च को, उससे क्या कहते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये फॉल ऑफ बास्टिल कब हुआ था? नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस ने वोट किया था। कब वोट किया था? अच्छा, ये टाइप क्या चीज़ है? टाइप किस चीज़ को कहते हैं? अच्छा, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बनाई किसने? क्वेश्चन 43। फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। तो इसके बारे में क्या चीज़ सही है और क्या गलत है? चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही लग रहा है आपको, कौन सा गलत लग रहा है? नेपोलियन की हार कब हुई थी? और लुई 16 किस साम्राज्य से थे, किस परंपरा के थे? किसी क्वेश्चन है, दोनों के दोनों, दोनों ही फेमस है। उनके ओल्ड रेजिम। ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, लिख दीजिए जल्दी से आंसर। और ये ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मारी, मारी बिस्किट होता है आज का, एंटोनेट किसकी रानी थी? किस राजा की रानी थी भाई? बुक टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट किसने लिखी है? चलिए ये बताना है आपको, दैट्स इट। तो इस टेस्ट में इतना ही। आई होप आपने इसमें से बहुत कुछ किया होगा। ऑल द बेस्ट।